Manmohan Desai was an exceptional director and an exceptional human being. I had the great privilege and honor of working with him in several projects. And throughout my association with him and the films that we did together, each one, each day, each moment, each hour was a learning of this very creative genius called Manmohan Desai, whom we all very fondly called Manji. His creative genius was often referred to as madness, a kind of eccentric madness. But in his madness, there was a certain culture, a certain positivity, which attracted masses in the millions to all his films. And we were recipients of their love, of their patronage. Many a time when he used to narrate the story, the title of the film, a particular sequence, we would all internally have a little snigger or a smile and say, what is Manji thinking? How is he going to do this? This is just ridiculous. It cannot be real. It's not happening. But when it came on the screen, the audience would stand up, they would scream, they would throw money on the screen. And that's when we realized he was right, we were all wrong. There was the famous mirror scene of Amar Akbar Anthony. And we were shooting Parvarish, another film that he was directing, and Amar Akbar Anthony together in the same studio, in RK Studios. So on the Parvarish set, there was an action sequence going on with Vinod, with Amjad Khan and myself and lots of others. And simultaneously on another floor in RK Studios was the mirror scene of Amar Akbar Anthony. So he asked me to rehearse for the Amar Akbar Anthony scene, and he said, I'm going to go across. मैं एक दो शॉट लेकर के आता हूँ, तुम रिहर्सल करो, फिर मैं आकर के टेक करता हूँ. When he came back, he said, क्या हुआ? मैंने कहा, सर वो शूटिंग हो गई उसकी. अरे यार ऐसे ही तो नहीं ठोक दिया तुमने गाना. मैंने कहा नहीं सर, आप देख लीजिएगा. Now those days, immediate reference or looking at monitors, we never had those equipment with us. So I think after 1 or 2 months or even 3 or 4 months later, he asked for that mirror scene sequence to come because he wanted to see it. He said, चल देखते हैं इसको. So he saw it. And he came back, and I still remember, we sat on the floor, on the ground near the steps of the studio office. And he looked at me, and he's always called me Lalla. Lalla, आज एक बात बोलने वाला हूँ मैं. जब तक तू ना बोलेगा, मैं तेरे साथ ही काम करूँगा. That was his greatness, his very endearing quality. And he lived up to it. I never said no to him. But one fine day he said, I'm going to retire. Privately when we asked him, what are you doing? He said, I'd rather people ask me why than why not. Such a beautiful way of putting it. So thank you, Manji, for all that you did. And I spent some lovely times with him at his very humble home. We all miss him very much. He left us much before his time and much before we wanted him to leave. On his 85th birthday, on the 26th of February, we remember him, Ketan. And thank you so much for giving me an opportunity to talk about him in remembrance. Thank you. Namaskar. मनमोहन देसाई साहब का मेरे जीवन पर और मेरे करियर पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है. मेरे जीवन पर इसलिए कि मैं उनकी फिल्में देखकर चाहता था कि मैं कमर्शियल एक्टर बनूं. हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का था. मुझे उनकी फिल्में बहुत मनोरंजक लगती थी और बहुत एंगेजिंग लगती थी. और अजीब इत्तेफाक है कि जब मैं सारांश की शूटिंग विल्सन कॉलेज में मुंबई में कर रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट सीन करते हुए मुझे पता लगा कि नज़दीक ही मनमोहन देसाई साहब मर्द फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. और मैं उनसे मिलने चला गया और जाहिर सी बात है कि मैं बूढ़े के गेटअप में था. और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मैं अपना करियर अब शुरू कर रहा हूँ और आपसे कुछ मुझे एडवाइस चाहिए. तो उन्होंने कहा अब तो करियर ख़त्म करने का टाइम आ गया, अब आप एडवाइस क्या मांग रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये मेरा गेटअप है, मैं 28 साल का हूँ. तो उनको यकीन नहीं हुआ. तो जब मैंने अपना शूटिंग ख़त्म करके मैं
उनसे जाके मिला और मैंने कहा मैं वही लड़का हूँ जिसने आपसे अपने करियर के बारे में बात की थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम हमेशा याद रखना, अपनी डायरी फुल रखना। जब काम तुमको मिलना शुरू हो जाएगा तो सबको बोलना कि मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास काम करने के लिए टाइम नहीं होगा तो तुमको लोग और काम देंगे। दैट वाज आई थिंक इन 1984 अ ग्रेट एडवाइस फ्रॉम अ ग्रेट मैन। हिज सिनेमा did not need logic because the common man on the streets really identified with that. As a person he was larger than life. उनको सेट पर देख के लगता था कि आपका भी खून बढ़ रहा है। मैं जब भी उनसे मिलने गया था, केसवाड़ी में मिलने गया था, हमेशा इतने चार्ज होकर बात करते थे, इतने मोटिवेशनल थे कि मन को सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। मेमोरीज कीप पीपल अलाइव, मूवीज कीप देम अलाइव, एंड आई थिंक ये सिनेमा will always keep him alive. My favorite Manmohan Desai film is Amar Akbar Anthony. मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। सॉन्ग्स, एक्शन, ड्रामा, जो मासेस को पसंद है अपन देगा। दैट वाज मनमोहन देसाई। मनमोहन जी had a 65% ratio of super hits. Out of the 20 films that he directed, 13 were blockbusters. उनमें से एक फिल्म मेरी थी, मर्द। आज भी मनमोहन जी को मैं इतना मिस करता हूं। He loved his gully cricket, he loved his dosas, humorous, a childlike personality. छोटे से वीडियो में मैं I don't think I will be able to complete the entire life and times I've shared with मनमोहन देसाई। लेकिन इतना कहूंगा, ऐसा आदमी ना था, ना है, ना होगा। कभी कभार ऐसा सितारा आसमान में चमकता है, वो सितारा मेरी नजर में एक ही था, मनमोहन देसाई। आई मिस यू। जब आप अपनी पूरी वैन में चुपके से मेरे नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में आए थे और सबसे कहा था घर में आकर, बोलना नहीं कि मनमोहन देसाई आया तुझसे मिलने, नहीं तो दूसरे म्यूजियम को पता लग जाएगा। बोला मनमोहन जी आप इतनी बड़ी वैन में आए, सारी दुनिया देख चुकी है आपको, लेकिन आप मुझे बोल रहे बोलने को नहीं। ही वॉज लाइक अ चाइल्ड। आई मिस यू मनमोहन जी। एंटरटेनमेंट। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या एंटरटेनमेंट लगा दूँ। अगर इसे सही और सस्ते सरल तरीके से बताया जाए तो इसे कह सकते हैं आप मनमोहन देसाई। एंटरटेनमेंट दुनिया का बेताज बादशाह। एक किस्सा सुनाता हूँ अमर अकबर एंथनी का। पिक्चर बनी, मनमोहन जी के पास जितना भी अपना जमा पूंजी थी सब पिक्चर में लगा दी थी। पहली पिक्चर थी उनकी एज ए प्रोड्यूसर, MKD फिल्म्स के नाम पे। पिक्चर बनी जी, मेट्रो में प्रीमियर। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के यूसुफ साहब, दिलीप कुमार जी गेस्ट थे, मेन गेस्ट थे, आए, देखा पिक्चर ख़त्म हुई। देसाई साहब उन्हें बाहर उनकी कार तक छोड़ने के लिए गए। अब डरते डरते उन्होंने पूछ ही लिया कि यूसुफ साहब पिक्चर आपको कैसी लगी। तो जानते हैं यूसुफ साहब का क्या जवाब था? मनमोहन ये पिक्चर नहीं, चूचू का मुरब्बा है। क्या कि वो गाड़ी में बैठे हुए निकल गए। अब ये उनका धक कि ये चूचू का मुरब्बा क्या भाई? अनिल, ये चूचू का मुरब्बा क्या होता है यार? मैंने कहा चूचू का मुरब्बा, ये मुहूर्त वाले दिन अब ये चूचू का मुरब्बा का कहते हैं। यूसुफ साहब बोल गए कि ये पिक्चर नहीं, चूचू का मुरब्बा है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है कि मैंने मनमोहन जी, चूचू का मुरब्बा उसे कहते हैं जिस मुरब्बे में खटास, मिठास, ये आपका खट्टापन, नमकीन, मीठापन कि जो टेस्ट आप दुनिया का है आपको चूचू के मुरब्बे में मिलेगा। आप बोलिए कि वो पिक्चर के लिए आपको इतना बड़ा कमेंट्स दे गए हैं कि इससे बड़ा कमेंट्स आपको इस पिक्चर का नहीं मिलेगा। ये चूचू का मुरब्बा है। इस पिक्चर में हंसी है, मजाक है, गाने हैं, एक्शन है, सब तो चूचू का मुरब्बा ही है ना ये। और आज होते तो उनसे पूछता, मनमोहन जी चूचू का मुरब्बा कैसा है? In my time,
when I was working with Manmohan Desai, he was not a director, but the topmost director of his time. With him, working was a very big pleasure. He had so much confidence in me that he never came to the set. He used to tell me, this is what I want, you shoot it, edit it, and I will come only to the editing room to see how it is done. And it has been a real pleasure to work with him. And he had the pulse of the people. He had a condition. He used to say, you can take any damn cameraman in the world, but my visual effects technician, you cannot change any. It has to be done by Ramesh, me. So it was a big pleasure for me working for him. In fact, indeed, he was a master film craft maker. He was a master film craftsman, It was all the freedom Manji gave me, and I could show my creativity to him. But I salute that master craftsman, and I miss him a lot today. I was very lucky and very fortunate to have been closely associated with Manmohanji. He would be very eager to watch the rushes with his editor on the editing machine. After watching the rushes, he would discuss each scene with the editor. He would explain the concept of each scene and then leave it to the editor to come out with the best results. He always stood by his boys and his technicians. On his 85th birth anniversary, I am remembering Manmohan ji. मंजी के साथ मैंने बहुत काम किया, उनकी कई फिल्मों में गाने गाए। ये सिलसिला शुरू हुआ जब बॉबी के गाने रिकॉर्ड हुए, तब मंजी ने गाने सुने और उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से कहा कि मुझे ये आवाज़ चाहिए डब्बू के लिए। तब वो फिल्म बना रहे थे चाचा भतीजा, स्टारिंग धर्मजी एंड डब्बू। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये गाने तो अभी रिकॉर्ड हुए हैं बॉबी के लिए और राज साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे ये हो नहीं सकता। तो वो राज साहब से मिलने गए और राज साहब को कन्विंस किया कि आप ही की फिल्म पहले रिलीज़ होगी और आप ही के गाने रिलीज़ होंगे, मेरी फिल्म और मेरे गाने बाद में आएंगे। एंड राज साहब एग्रीड। तो सबसे पहला गाना मंजी के लिए मैंने गाया था चाचा भतीजा के लिए, माँ ने कहा था वो बेटा। और इसी फिल्म में मुझे अपने आइडल, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ और हमेशा रहूँगा, रफ़ी साहब के साथ गाने गाने का मौका मिला। एक किस्सा मैं कभी नहीं भूलूँगा। हम नसीब फिल्म का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, किशोर दा, रफ़ी साहब, आशा जी, उषा जी और मैं, हम गा रहे थे। इस गाने की रिकॉर्डिंग को बहुत टाइम लग गया और शायद 2 पार्ट्स में किया गया। तो किशोर दा ने कहा कि ये तो 2 गाने हो गए, तो हमें 2 गाने का पेमेंट मिलना चाहिए। तो सब ने कहा ठीक है। जब ये लिस्ट गई सिंगर्स की पेमेंट की मंजी के पास, तो उन्होंने कहा कि सब 2-2 गाने का पेमेंट मांग रहे हैं, तो ठीक है दे दो। मेरे गाने के आगे एक ही गाने का पेमेंट लिखा था। तो उन्होंने कहा भी ऐसा क्यों? तो प्रोडक्शन वाले ने कहा कि उन्होंने एक ही गाने का पेमेंट मांगा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और एक टिपिकल वर्ड था उनका, तो बोले क्या बेड़िया, बहुत पैसा है तेरे पास, तो दे दे थोड़ा मुझे। तो मैंने कहा मंजी क्या हुआ क्यों बोल रहा है पैसा? तो उन्होंने कहा कि देख, सब सिंगर्स 2-2 गाने का पेमेंट ले रहे हैं, तो तूने एक क्यों बोला है? तो मैंने कहा मंजी क्या फ़र्क पड़ता है, गाना तो एक ही है। तो उन्होंने प्रोडक्शन वाले से कहा कि इसको भी 2 गाने का पेमेंट दो। बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, लेकिन उतना ही बड़ा दिल था उनका। मंजी अब जहाँ भी हैं, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नमस्कार दोस्तों, स्वर्गीय मनमोहन देसाई साहब जो मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे अपना पहला ब्रेक कूली फिल्म में दिया था, इस 26 फरवरी को उनका 85th बर्थडे आ रहा है। उनको याद करते हुए
मैं बस ये कहना चाहूंगा कि व्हाट अ मैन ही वॉज. अकॉर्डिंग टू मी, he is one of the greatest directors Indian cinema has ever produced. You know, he was a maverick. और वो जो था, जो एक आम जो इंसान है भारत का, उसके साथ उनका जो कनेक्ट था, वो सब उनकी फिल्मों में नजर आता था. कई क्रिटिक्स उनको हमेशा रन डाउन किया करते थे, तो वो हमेशा मंजी कहा करते थे कि भैया मुझे इन क्रिटिक्स का, मुझे इनका अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पब्लिक का रिवॉर्ड चाहिए. मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कुली में तो मैं एक न्यू कमर था, पर जिस तरह वो प्रोत्साहन देते थे, कम ऑन सन, बेटे करो, वेरी गुड. यूज्ड टू ऑलवेज, आदमी को उनके लिए अमिताभ बच्चन हो या कोई न्यू कमर हो, सेट पर सब बराबर होते थे. वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे. तो जो सेट पे सुबह आ गए, तो जैसे हम तो न्यू कमर थे, तो हमारा काम था सुबह से शाम तक हमें उनको बॉलिंग करनी है. वो बोलते मुझे आउट करके दिखाओ, और अगर हम उनको आउट करेंगे तो हमको इनाम देंगे, वो कुछ ना कुछ देंगे. बट उनको आउट करना नामुमकिन था. ही वॉज एन अमेजिंग बैट्समैन, एंड आई एम श्योर कि अगर वे फिल्मों में नहीं होते तो वो क्रिकेट की दुनिया में जरूर आज एक लेजेंड ही होते. ही वॉज अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन, इज ए रियल शोमैन. तो आज उनको याद करते, और उनके जो बेटे जो फर्जंद हैं, केतन साहब, केतन देसाई साहब, मुझे याद है इस जैसा पीपल्स पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा. सॉफ्ट स्पोकन, जो एक एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, सबको एक साथ लेकर चलना, ये केतन में, आई थिंक ये मंजी से उनमें आया है. तो ईश्वर वो जहां भी हैं, बस उन्हें खुश रखे. मैं उन्हें याद करता हूं. फॉर मी